A very good morning to everyone. Students, take out your social studies book, the page number 186. Today we will start the new chapter from your social studies, that is the chapter 4, the Parliament of India. Everyone be ready with your book. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में, दैट इज संसद के बारे में. क्लियर. सो क्लास हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जनरली व्हेन ऑल द पावर्स ऑफ द कंट्री आर सेंट्रलाइज्ड एट द वन लेवल, सो इट इज़ this form of the governance known as a unitary government, and contrary to this, in a federal system all the powers are clearly defined between the center and the state. और हमको पता है कि हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है. फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, दैट इज़ सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, और डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है. सो यही चीज़ हमारे इंडिया में है. सो व्हाट इज़ रिटन इन योर बुक, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज सेट अप सिमिलरली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट. Indian Parliament controls the government of India. So in this lesson you will learn about the parliament system of India in detail. So let's start the chapter. Parliament. The legislature of India frames the laws and describes by the official. The legislature is called the parliament or the Sansad. In modern political history, parliament is the elected legislative body of the country. So इसका मतलब parliament क्या है, parliament is the supreme legislative body of India, and parliament has the power of making laws on the union and the concurrent list in the country. And in the concurrent list, the parliament and the state legislature, they have the joint jurisdiction. However, in case of the conflict over any law made by the concurrent list, तो जो यूनियन लॉ होता है दे विल प्रिवेल अपॉन दी स्टेट लॉ. ठीक है. सो ये होता है हमारा इंडियन पार्लियामेंट में. दैट मीन्स द पार्लियामेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज competent to legislate on all the matters that are enumerated in the union list and the concurrent list of the constitution. And India has a parliamentary form of government. इंडिया में कैसा सिस्टम है, parliamentary form of government है in the federal structure, because this system is comparatively better in the form of the responsibility better उठाता है ये. Here the executive is answerable to the legislature, and in this system the president remains a formal head. Who is here head? President. So need of the parliament, why we need parliament? To create and manage the law and order of our country, हमारे countries के laws बनाने के लिए. To reduce the chances of dictatorship, तानाशाही के जितने भी chances हैं उनको कम करने के लिए. To give freedom to multiple religious groups so they can elect their representatives, उनको freedom देना ताकि वो freely होके अपने representative को choose कर सके. Parliament is the highest forum of discussion and debate on public issues and national policy in any country. Parliament क्या है, सबसे highest forum है discussion के लिए, debate के लिए. जितने भी public issues वाले जितने भी matter होते हैं national policy वाले, वो सब यहाँ पर आकर discuss होते हैं. To control and handle all the money that the government has, that means government की जितनी भी monetary assets हैं इन सब के बारे में इनका control करना, इनको handle करना, ये काम होता है हमारे पार्लियामेंट का. सो जो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, इसमें अगर हम लोग देखो एक क्लास यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, तो जैसे हमारा फेडरल सिस्टम है, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर में हमारा क्या आता है, ये दो पार्ट्स में हमारा यहाँ पर डिवाइड हो जाता है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू दी टू पार्ट्स. जो पहला आता है उसको हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव. क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव. और ये जो सेकंड होता है हमारा, दैट्स द लेजिस्लेचर. फेडरल सिस्टम जो है ये टू पार्ट्स में हमारा यहाँ पर डिवाइड है, दैट इज़ एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर. अब जो एग्जीक्यूटिव होता है, देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेजिस्लेचर के, बिकॉज हम लोग इस चैप्टर में पहली बार तो दोनों चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं. बट लेजिस्लेचर में क्या होता है, दैट इज़ अ पार्लियामेंट.
यहाँ पे हम किसके बारे में देखते हैं, पार्लियामेंट। सो यहाँ पर पार्लियामेंट में 3 चीज़ें आती हैं, ठीक, कितनी चीज़ें आती हैं, 3 चीज़ें आती हैं। पहला हमारा होता है प्रेसिडेंट, सेकंड इज द लोकसभा, एंड थर्ड वन इज राज्यसभा। दैट इज़, अगर हम लोग हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे तो पार्लियामेंट में हम लोग 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड दी राज्यसभा। सो ये 3 चीज़ें यहाँ पर हैं जो हम लोग अपने इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड ये तो हमारा था लेजिस्लेचर, बिकॉज ऑफ फेडरल सिस्टम जो है, दैट इज़ अ फेडरल स्ट्रक्चर जो है इंडिया का, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एग्जीक्यूटिव एंड दी लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो लागू करता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जिसको एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको मान रहा है, तो वो जो काम होता है वो यहाँ पे किसका काम होता है, एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव में हमारे आते हैं, इसमें भी सबसे पहले हमारा प्रेसिडेंट आएगा एग्जीक्यूटिव में, देन इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं एग्जीक्यूटिव में। थर्ड हमारा क्या आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो ये 3 चीज़ें आती हैं हमारी एग्जीक्यूटिव में। I am again repeating class, in the federal structure in India, it is divided into the 2 parts, that is the executive and the legislature. Legislature में हमारा parliament था, and it is divided into again 3 parts, that is the president, lok sabha and the rajya sabha. फिर हमारा आता है executive, that is the second part of the federal structure in India. उसमें हमारा आता है president, prime minister and thirdly the council of the minister. So let us study in detail about it. Parliament system of India. The Indian Parliament comprises the 2 houses, Lok Sabha and the Rajya Sabha. 2 houses होते हैं, कौन कौन से, लोक सभा and the Rajya Sabha. The President of India acted as the head of the Parliament. Who is the head of the Parliament? President. Also these 2 houses form the Union Legislature. Now let us study in detail about the Lok Sabha. Lok Sabha is the lower house and is the body of representatives of the people. It is also known as the House of the People because its members are directly elected by the people who are eligible to vote. In our country, the minimum age required to cast the vote in the election is 18 years old. Besides, the maximum strength of the Lok Sabha can be 552. And 2 seats are reserved for the Anglo-Indian. The President nominates these 2 seats. Also, Lok Sabha elects one of its members as the presiding officer and he or she is called the Speaker. Lok Sabha is not a permanent body. Therefore, the members of the Lok Sabha are elected for 5 years. After the end of the 5 years term, the re-election again take place. The political party who secures the majority seats, 272 plus, in Lok Sabha gave the name of its leader to the president to appoint the prime minister. So क्या दिया हुआ है लोक सभा में, दैट मीन्स इट इज़ composed of the representatives of the people who are chosen directly in the election on the basis of the universal adult franchising. And it is also known as the lower house. किस नाम से जाना जाता है लोक सभा को, lower house and the house of the people. मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है इस हाउस की, which is laid in the constitution, is 522. Now class, currently there are 545 members in the Lok Sabha. Out of those 530 members जो हैं they represent the state and remaining 13 members are they are to represent the union territory and 2 members are nominated by the president. So ये जो टर्म होता है लोकसभा का ये होता है 5 years का. दैट मीन्स यहाँ पे लोग 5 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं.
एंड इट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इसको पहले भी डिसॉल्व कर सकता है, इसको ख़त्म कर सकता है इनके टेन्योर को ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो दैट्स वाई इसको हम लोग टेम्परेरी हाउस भी कहते हैं। क्या कहते हैं लोकसभा को? टेम्परेरी हाउस। सो व्हाट इट इज़ कॉल्ड? टेम्परेरी हाउस, हाउस ऑफ द पीपल, लोअर हाउस। लोकसभा में एक ऐसा मेंबर भी इलेक्ट होता है किसकी तरह? प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह, जिसको क्या बोलते हैं? लोकसभा बोलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्पीकर। लोकसभा इज़ नॉट अ परमानेंट बॉडी। अगर ये परमानेंट बॉडी नहीं है सो क्या है? ये टेम्परेरी हाउस है। इसी वजह से इसके जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के, ये 5 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं, और जब ये 5 साल ख़त्म हो जाते हैं तो दोबारा से लोकसभा के इलेक्शन होते हैं आफ्टर दी 5 ईयर्स। इसमें वोट करने के लिए 18 ईयर्स ऑफ एज की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम। दैट मीन्स हु हैव अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड हु आर अबव द एज ऑफ 18, दे आर एलिजिबल टू वोट। Nextly, let's study about the eligibility. So what is the eligibility criteria for becoming a member or for to contest the election for the Lok Sabha is that the minimum qualifying age for becoming the members of the Lok Sabha is 25 years. That means a citizen should be above the age of 25 years. He or she must be a citizen of India. That means Indian citizen होना चाहिए. He or she must be a voter for any parliamentary constituency in India. क्या होना चाहिए? वो वोटर होना चाहिए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में. ही और शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि कोई भी उसका उसमें फ़ायदा नहीं होना चाहिए. ही और शी शुड नॉट बी वायलेंट और द बैंकरप्ट. दैट मीन्स दे शुड नॉट बी द बैंकरप्ट और मेंटली अनस्टेबल नहीं होना चाहिए. He or she should possesses all those qualifications prescribed by the parliament from time to time. That means वो सारी qualifications उसमें होनी चाहिए that is needed by the parliament time to time. Okay, so what we have read about in the लोक सभा that कि लोक सभा को हम लोग हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं. लोकसभा क्या है? इट इज़ कंपोज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हु आर चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी. इसको हम लोग लोअर हाउस कहते हैं. मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताई है? 552. इसकी जो मेंबर्स होते हैं वो 5 ईयर्स के लिए होंगे. यहाँ पे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है बाकी की 2 सीट्स को. दैट मीन्स द सीट्स दैट आर रिजर्व फॉर द एंग्लो इंडियन. Clear? So this we have read about the Lok Sabha. So let us see what is written over the Rajya Sabha. Rajya Sabha is the upper house and is the council of state. The members of the Rajya Sabha are not elected directly by the people. They are elected indirectly by the legislative assemblies by the various states. The total number of Rajya Sabha is 250, out of which 238 members represent the state and union territories. In addition, the parliament nominate 12 members to the Rajya Sabha. Members of the Rajya Sabha are elected for the term of the 6 years. It is a permanent body where 1/3 of its members retire after every 2 years. Besides, every state is allotted a certain number for electing the Rajya Sabha members. States with a high population and the large area like UP have more representative than small states like Goa. सो क्या कह रहा था यहाँ पे राज्यसभा में? दैट द सेकेंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट. इसको हम लोग अपर हाउस भी कहते हैं. एंड मेंबर्स ऑफ दिस हाउस आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर. दैट मीन्स इसको हम लोग वोटिंग नहीं करते यहाँ पे. राज्यसभा कैन हैव एट मोस्ट 250 मेंबर्स. कितने मेंबर्स हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? 250 मेंबर्स, जिसमें से 238 मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के वो कौन इलेक्ट करता है? मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. एंड बाकी के जो 12 मेंबर्स होते हैं वो कौन करता है? प्रेसिडेंट. नाउ सी टोटल कितने मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में? राज्यसभा में टोटल हमारे मेंबर्स होते हैं 250. एंड अमंग दिस 250 238 मेंबर्स जो होते हैं ये कौन इलेक्ट करता है?
दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स करते हैं, एंड बाकी के जो रिमेनिंग 12 होते हैं वो कौन करता है, प्रेसिडेंट. सो दिस इज द मेन क्राइटेरिया. And the nominated members are the persons who have disguised themselves in the field of the art, like literature हो गया, science and social service. राज्यसभा एक permanent body है. क्या है ये? It is a permanent body. हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लोकसभा एक टेम्परेरी बॉडी थी, बट ये क्या है, ये हमारी परमानेंट बॉडी है. दैट मीन्स अनलाइक लोकसभा इट कैन नॉट बी डिज़ोल्व, ये डिज़ोल्व नहीं कर सकते इसको हम लोग. टर्म जो होता है इसमें राज्यसभा का वो 6 ईयर्स होता है. 1/3 मेंबर्स जो हैं वो रिटायर होते हैं हर 2 ईयर्स के बाद, एंड न्यू मेंबर्स आते हैं उस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए. एंड टू बी एलिजिबल फॉर द मेंबरशिप इन द राज्यसभा, एक मेंबर जो है उस पर्सन जो है वो क्या होना चाहिए, इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, एज इट इज़ रिटन इन द एलिजिबिलिटी ओवर हियर. He or she must be a citizen of India. He or she must be at least 30 years of age. That means the citizen must be 30 years of age or older. And he or she should not hold any office of profit. कोई भी इसमें प्रॉफिट नहीं होना चाहिए उसका. He or she must have their name present on the voter list. He or she cannot be proclaimed criminal. वो criminal नहीं होना चाहिए. That means should not be bankrupt and criminally convicted. He or she should not be bankrupt. He or she must possesses other such qualifications as prescribed in that behalf by or under any law made by the parliament. So that means जो क्वालिफिकेशंस चाहिए होंगी पार्लियामेंट को वो सारी क्वालिफिकेशंस उसमें होनी चाहिए. So this is what we have read under the लोक सभा and the राज्यसभा. सो दैट मीन्स हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इंडियन पार्लियामेंट में 3 चीज़ें आती हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड द राज्यसभा. दे आर 2 हाउसेज, दैट इज़ द राज्यसभा एंड द लोकसभा. राज्यसभा इज़ नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट. लोकसभा इज़ नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रेसिडेंट. The President of India is the administrator of the state and the commander-in-chief of the armed forces. The primary duty of the President is to preserve, protect and defend the Constitution and law. Also, the President is elected by the Electoral College, which comprises both houses of Parliament and Union Territories of India and the Pondicherry. Similarly, the President of India is elected for the term of 5 years from the date on which he enters his office. From the date he enters his office. So that means ये यहाँ पे क्या बता रहा है प्रेसिडेंट के बारे में, दैट जो प्रेसिडेंट होता है द प्रेसिडेंट इज़ अ पार्ट ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, बिकॉज जितने भी बिल्स होते हैं पार्लियामेंट के वो तभी पास होते हैं, दे आर पास बाय द पार्लियामेंट, बिकम लॉ ओनली व्हेन इट इज साइन बाय द प्रेसिडेंट. अगर प्रेसिडेंट साइन करेगा तभी वो जो बिल है वो पास होगा, अदरवाइज द बिल विल नॉट बी पास्ड. प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द यूनियन टेरिटरी, सॉरी ही इज़ द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव. यूनियन एग्जीक्यूटिव का क्या होता है, वो हेड होता है प्रेसिडेंट. एंड ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. इंडिया का पहला नागरिक कौन है, भारत का देश का पहला नागरिक कौन कहलाता है, प्रेसिडेंट. ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज. इनडायरेक्टली क्या होता है, ये इलेक्ट करे जाते हैं, दैट मीन्स डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, डायरेक्टली नहीं होते, इनडायरेक्टली करे जाते हैं. एंड ही इज़ द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्टेट which consists of the elected members of both the houses of Union Parliament and the elected members of all the states and the Union Territory. अब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती हैं पार्लियामेंट प्रेसिडेंट बनने के लिए, मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, सेम थिंग, इंडिया का नागरिक होना चाहिए, मस्ट बी 35 ईयर्स ऑफ एज और अबव,
उसे बड़ा होना चाहिए. He or she must be qualified to become a member of the लोक सभा. दैट मीन्स लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए. एंड शुड नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट or other offices of profit. He or she shall not be a member of either house of the parliament. Clear? अब बात करते हैं इनका टेन्योर कितने टाइम का होता है. ही इज इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ द 5 years. कितने साल के लिए होते हैं इलेक्टेड? 5 years के लिए. It is written over here. That means they are elected for the term of the 5 years. And he or she can be removed from the office through the process of impeachment by the parliament before the completion of his tenure. ये भी remove करे जा सकते हैं. Is it clear? Now next comes to the Prime Minister. The Prime Minister of India is the leader of the government. वो क्या होते हैं? लीडर होते हैं गवर्नमेंट के. And the chief advisor to the president. Firstly, they are the leader of the government and the chief advisor to the president of India. Also, he or she is the head of the council of ministers, leader of the majority party in parliament. The prime minister leads the administrative branch of the government of India. Furthermore, he or she is a link between the president and the legislature. अब देखो इनका जो मेन रोल होता है प्राइम मिनिस्टर का, वो क्या होता है कि जितनी भी पावर्स होती हैं, फंक्शंस होते हैं इनके, अब देखते हैं क्या है. दे रिकमेंड पर्सन्स हु कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर्स बाय द प्रेसिडेंट. दे एलोकेट वेरियस पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर्स. प्रेसिडेंट क्या करता है? वो सिग्नेटरी अथॉरिटी है हमारे इंडिया में. प्रेसिडेंट का काम क्या है? साइन करना. वो साइन करेगा तभी कोई भी जो पॉलिसी होगी, जो रूल होगा, जो भी लॉ होगा वो लागू होगा. बट रियल कस्टोडियन कौन है इन सब का? प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंट का काम क्या है? प्रेसिडेंट क्या करता है हमारे यहाँ पर? प्रेसिडेंट हमारे यहाँ ओनली साइन करता है. ठीक है. That means he is the signatory authority to union executive in the parliament form of the government. But here the prime minister is a real custodian of all the executive authority. Actually में जो real custodian है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर है. एक्चुअली जितनी भी पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, दे आर एक्सरसाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर इन अ प्रैक्टिकल. जो भी प्रेसिडेंट बोलता है इन सब चीज़ों को कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है. President appoint the leader of the majority party in लोक सभा as the prime minister. प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है मेजॉरिटी पार्टी का लीडर, तो वो कौन बन जाता है? प्राइम मिनिस्टर बनता है. एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर फिर उसके बाद प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. क्या अपॉइंट करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो दैट्स वाई ही इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी. अब जो लीडर है ये मेजॉरिटी पार्टी का, तो ये जो मेजॉरिटी पार्टी है तो किसके रिकमेंडेशन पर इसका लीडर उनको बनाया जाता है? प्रेसिडेंट. क्लियर? सो दैट मीन्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. अब काउंसिल में 3 कैटेगरीज आती हैं क्लास. पहली होती है कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर एंड कैबिनेट. कैबिनेट में कौन इंक्लूड होता है? प्राइम मिनिस्टर. Cabinet ministers of the important portfolios and the council of ministers, they hold their powers so long as they have the confidence of the majority in the Lok Sabha. Is it clear? प्राइम मिनिस्टर ही एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, जजमेंट में टाइम टू टाइमली वो उनको बताता है. सो दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर क्या है? He stands as the head of the council of the minister. So the council of minister automatically they dissolve when the prime minister resigns or something else misfortune happens. ठीक है. So what is the eligibility criteria for the prime minister?
He should be the citizen of India. He should be either a member of the Lok Sabha or the Rajya Sabha. He should be at least 25 years of age, must not hold any office of profit under the Indian Parliament, and the candidate must be a member of the political party or coalition which has the garnered majority votes in the Lok Sabha. Candidates must not hold any office of profit under the Indian. सो दैट मीन्स ये सारे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताए गए हैं प्राइम मिनिस्टर के. नाउ नेक्स्ट कम्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ द गवर्नमेंट. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि प्राइम मिनिस्टर क्या है, गवर्नमेंट का लीडर होता है एंड चीफ एडवाइज़र होता है प्रेसिडेंट का, क्योंकि प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करता है, और वो हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एंड लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन पार्लियामेंट. और पार्लियामेंट की जो मेजॉरिटी पार्टी उसका लीडर है, तो कौन उसको लीडर चूज करता है, प्रेसिडेंट. प्राइम मिनिस्टर लेड द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इज द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द लेजिस्लेचर. प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर के बीच में ये क्या होता है, लिंक होता है. क्लियर? So in this chapter we have studied about the federal government and the parliamentary system of India, and उसके बारे में, and in addition to this we also came to know about the function of the parliament as the legislature and its construction. We have read about the powers and tenure of both the houses, that is the Lok Sabha and the Rajya Sabha, and we also get ourselves acquainted with the president, prime minister and the council of minister as part of the union executive. So class, now today we have completed our chapter, that is the parliament of India, and now I hope आप सबको ये chapter समझ में आया होगा. And class, just thoroughly read up this chapter by yourself, and if you have any doubt regarding this chapter, any topic which you have not understood, so you can ask from me. Okay, so thank you class, this much for today.